کل یعنی کہ 5 اکتوبر سن 2025 کو جموں کشمیر کے اردو لیکچرر کا امتحان ہوا ہے۔ اس میں پوچھے گئے اردو کے سوالات کو آج ہم حل کریں گے۔ پہلا سوال یہ کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دوآبا کی کھڑی بولی اور جمنا پار کی ہریانوی کے زیر اثر ہوئی۔ اردو کی ابتدا سے متعلق یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو یہ نظریہ مسعود حسین خاں کا ہے۔ مسعود حسین خاں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں یہ نظریہ پیش کیا۔ شوکت سبزواری کا نظریہ یہ ہے کہ دوآبۂ گنگ و جمن میں اردو کی پیدائش ہوئی۔ محی الدین قادری زور اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں، اور محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اردو کی جائے پیدائش سرزمین پنجاب ہے۔ اگلا سوال یہاں پہ دو اقوال کے طور پہ دیا گیا ہے۔ پہلا قول ہے کہ ایہام شاعری میں ایسے ذو معنی الفاظ کے استعمال سے عبارت ہے جن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک قریب کے اور ایک بعید کے۔ تو یہ پہلا قول ایہام گوئی سے متعلق بالکل صحیح ہے۔ دوسرا ہے کہ ایہام کے چلن نے اردو شاعری کو معنوی پیچیدگی سے آزاد کیا۔ جی نہیں، ایہام گوئی سے معنوی پیچیدگی بڑھی، کیونکہ اس میں الفاظ دو معنی کے ہوتے تھے، تو اس سے معنوی پیچیدگی بڑھی، آزادی نہیں ملی۔ تو اس لیے یہ قول غلط ہے، یعنی کہ پہلا قول صحیح ہے اور دوسرا قول غلط ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان سا سوال ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہتے ہیں۔ ان کو 12 پیاریوں کا عاشق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو میں بہت زیادہ تخلص استعمال کیے۔ جمیل جالبی کے مطابق انہوں نے 17 تخلص استعمال کیے۔ اردو اور فارسی کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی انہوں نے شاعری کی۔ کس شاعر کا تعلق بہمنی دور سے ہے؟ تو فخر الدین نظامی، ان کا تعلق بہمنی دور سے ہے۔ بہمنی دور میں ہی انہوں نے اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ لکھی تھی۔ یہاں پہ ایک شعر ہے کہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ بابائے اردو ولی دکنی کا ہے۔ ٹھیک ہے، ولی دکنی کو بابائے اردو محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ یہاں پہ ایک شعر ہے، کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ تو یہ جو شعر ہے اس میں صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے۔ جب کسی شعر میں پرانے قصے یا تاریخی واقعے کا ذکر ہو تو اس میں صنعت تلمی ہوتی ہے۔ جیسے نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس میں بھی صنعت تلمی ہے۔ عجائب القصص، یہ داستان ہے کس کی ہے؟ شاہ عالم ثانی کی ہے۔ میرمن کی داستان باغ و بہار اور گنج خوبی ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی داستان کا نام فسانہ عجائب ہے، اور مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کا پہلا ناول میرۃ العروس ہے۔ تشبیب کس صنف کے اجزائے ترکیبی کا حصہ ہے؟ تشبیب، گریز، مدح، دعا اور مدعا، یہ سب اجزائے ترکیبی قصیدہ کے ہیں۔ تشبیب کو نسیب بھی کہا جاتا ہے۔ مثنوی سحر البیان کا کردار کون سا نہیں ہے؟ دیکھو، بے نظیر، بدر منیر اور نجم النساء، یہ تینوں کردار مثنوی سحر البیان کے ہیں۔ گل بقاولی کا کردار یہ جو ہے مثنوی گلزار نسیم کا ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب چوتھا والا آپشن ہوگا۔ مرثیہ کا جز کون سا نہیں ہے؟ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، یہ 8 اجزائے ترکیبی مرثیہ کے ہیں۔ مدح یہ مرثیہ کا جز نہیں ہے بلکہ یہ قصیدہ کا جز ہے۔ حال کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری 1893 عیسوی میں لکھی گئی۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے۔ حالی نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے اپنا تنقیدی نظریہ بھی دیا تھا۔ تو مقدمہ شعر و شاعری کیا ہے؟ تنقید کی کتاب ہے۔ اردو میں جدید نثر کا آغاز کس ادبی تحریک کے زیر اثر ہوتا ہے؟ تو سر سید کی وجہ سے جدید اردو نثر کا آغاز ہوا، یعنی کہ علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک کے زیر اثر اردو میں جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلا سوال،
अगले सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि गुबार खातिर की अदबी अहमियत किस हवाले से है। तो अदबी अहमियत इसका तर्ज निगारिश है। कहा जाता है कि अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र में उतरता। सज्जाद अंसारी का ये कौल है। यानी कि गुबार खातिर की अदबी अहमियत ये है कि इसका तर्ज निगारिश बहुत अच्छा है। और गुबार खातिर क्या है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है, जो कि किला अहमदनगर की जेल से इन्होंने अपने दोस्त हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे थे। और गुबार खातिर में खतूत की तादाद 24 है। ठीक है। एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें किसी ने कमेंट किया था, मैंने बताया था खुतबात अहमदिया में खुतबों की तादाद कितनी है। तो उसमें 12 खुतबे हैं, लेकिन किसी ने कमेंट में कहा था कि सर आप गलत बता रहे हैं, 24 खुतबे हैं। मेरे ख़्याल से वो गुबार खातिर में जो खतूत की तादाद है उससे कंफ्यूज हो गया होगा। ठीक है, याद रखिए गुबार खातिर में 24 खतूत हैं और खुतबात अहमदिया में 12 खुतबे हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, फ़वाइदुन नाज़रीन। ये रिसाला के मुदीर कौन थे? दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे, उनका नाम था मास्टर रामचंद्र। वो रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद के मुदीर थे। यहाँ पे एक शेर है कि नक्श फरियादी है किसकी, नक्श फरियादी है किसकी, शोख ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये किसका शेर है? सबको पता है, मिर्ज़ा गालिब के दीवान का ये पहला ही शेर है। किस नावल में तवाइफ की ज़िंदगी के हवाले से लखनवी तहज़ीब की तर्जुमानी की गई है? तो नावल उमराव जानदा, इसमें लखनवी तहज़ीब की तर्जुमानी की गई है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का ये नावल है। ठीक है। 1899 ईस्वी में हैदराबाद में ये मुकम्मल हुआ था। कुंवर उदय भान किस दास्तान का किरदार है? तो ये रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खाइंशा की दास्तान का किरदार है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खाइंशा की ऐसी दास्तान है जिसमें विदेशी अल्फाज से परहेज़ किया गया है। 5 मिसरों पे मुश्तमिल शेरी बंद को हम क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस यानी 5 मिसरों पे मुश्तमिल। उर्दू के किस अदीब ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का माखज़ ब्रज भाषा को करार दिया है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में लिखते हैं कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो ये जो नज़रिया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मसूद हुसैन खां का नज़रिया क्या है कि उर्दू दिल्ली और गिरदोनवाह में पैदा हुई। शौकत सब्ज़वारी दुआब गंगो जमन को उर्दू का मस्कन करार देते हैं और महमूद शीरानी ने उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब को करार दिया है। शेर की मौज़ूनियत और वज़न के तयन से मुतल्लिक़ इल्म को हम क्या कहते हैं? इल्म उरूज़ कहते हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। कलीमुद्दीन अहमद का कौल भी गज़ल से मुतल्लिक़ है। कलीमुद्दीन अहमद ने गज़ल को नीम वहशी शिन्फ़ सुखन कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, उस सिन्फ़ शायरी को क्या कहते हैं जिसमें किसी शहर इलाके या आबादी की बर्बादियों और तबाहकारियों का दर्द मंदी के साथ पेश किया जाता है? जिसमें किसी शहर की बर्बादी का जिक्र हो उसको हम शहर आसूब कहते हैं। मसनवी कदम राव पदम राव का ताल्लुक़ किस सल्तनत के ज़माने में है? देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बहमनी दौर के शायर थे वो थे फ़खरुद्दीन निज़ामी, और उनकी ही मसनवी है मसनवी कदम राव पदम राव। यानी मसनवी कदम राव पदम राव की तख्लीक बहमनी सल्तनत के ज़माने में हुई थी। अगला सवाल, ज़मानी तरतीब के लिहाज से कौन सा वाला ऑप्शन दुरुस्त है? देखो सबरस 1045 हिजरी में लिखी गई, ठीक है, यानी 1609 ईस्वी में। उसके बाद करबल कथा 1732 ईस्वी में। अजायबुल किसस का मुझे सन नहीं याद है, और बागो बहार 1803 में। तो ये हमारी सही तरतीब है। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। करबल कथा से पहले सबरस लिखी गई, क्योंकि सबरस तो उर्दू की पहली नसरी किताब
मानी जाती है या उर्दू की पहली दास्तान मानी जाती है, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। मीर हसन से मीर अनीस का क्या ताल्लुक़ था, तो मीर अनीस मीर हसन के पोते थे, ठीक है। शेरुल बयान वाले जो मीर अनीस हैं वो शेरुल बयान वाले जो मीर हसन हैं वो मीर अनीस के पोते हैं। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी तो दिल्ली होगा, लेकिन अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद में ही पैदा हुए थे, ठीक है। इलाहाबाद कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। शेर मेरे हैं खवास पसंद पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है, तो ये जो शेर है किसका है, किसने अपने अशार को खवास पसंद करार दिया है, तो मीर तकी मीर ने। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। खुदाए सुखन इनको कहा जाता है। पतरस बुखारी के इंशाइया मरहूम की याद में मरहूम लफ्ज़ का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, बाइस्किल के लिए हुआ है। खाका नामदेव माली के मुसन्निफ़ कौन है, नामदेव माली खाका मौलवी अब्दुल हक ने लिखा था, ठीक है। अगला सवाल, साहिल और समंदर में एहतशाम हुसैन ने किन दो मुल्कों के सफ़र से मुतालिक अपने तअस्सुरात व वाक़यात बयान किए, तो अमरीका और इंग्लिस्तान, ठीक है। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। ज़ैल में से किस नावल की तख्लीक दिल्ली में हुई, ठीक है। तौबतुन नसूस जो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है ये दिल्ली में लिखा गया। कौन सा किरदार, ज़ैल में से किस किरदार का ताल्लुक़ प्रेमचंद के अफसाना कफन से नहीं है। प्रेमचंद में माधव घेसु और बुधिया होते हैं, धनिया ये किरदार आपके गौदान नावल का है, ठीक है। तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। टूबाटेक सिंह का असली नाम बिशन सिंह है, ठीक है। टूबाटेक सिंह ये एक जगह का नाम होता है, ये मंटो का अफसाना है। दर्जेल में से किस अफसाना निगार का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। कृष्णचंद्र, हयातुल्लाह अंसरी और बेदी ये सब तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े थे, लेकिन इंतज़ार हुसैन का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। आखिरी आदमी इनका अफसाना बहुत ज़्यादा मशहूर है। ज़ैल के किस शायर की शनाख्त कसीदा निगार के तौर पर होती है। उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना ही फजूल होता। इमदाद इमाम असर के बकौल कौन है, वो सौदा हैं। तो सौदा ऐसे शायर हैं जिनकी शनाख्त कसीदा निगार के तौर पे होती है। नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम शेख वली मोहम्मद था। इनको कौमी शायर की हैसियत से जाना जाता है, अवामी शायर। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है और कौमी शायर चकबस्त को कहा जाता है। मरसिया के अज्जा तरकीबी में चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग को रज़्म भी कहते हैं, शहादत और बैन, ये सही अज्जा तरकीबी ऑप्शन सी सही होगा। अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी के ज़रिए किस तहज़ीब की पासदारी पर ज़ोर सर्फ किया, यानी किस तहज़ीब की पासदारी की और किस तहज़ीब की मुखालफत की, दोनों अलग अलग सवाल। यहाँ पे पासदारी यानी कि किस सिविलाइजेशन का उन्होंने सपोर्ट किया, तो जो हमारे यहाँ का मशरक़ी तहज़ीब थी उसका उन्होंने पासदारी पर ज़ोर दिया, और मगरबी तहज़ीब को उन्होंने तंज़ो मज़्ज़ा का निशाना बनाया और तंज़ो तज़हीक का निशाना बनाया। तो यहाँ पे हमें तहज़ीब की पासदारी की बात हो रही है, तो इसलिए मशरक़ी तहज़ीब सही जवाब होगा। नज़्म है साकीनामा, अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूआ में शामिल है। देखो यहाँ पे अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं। पहला है बाग़े दरा 1924 में शाये हुआ, दूसरा बाले जबरील 1935 में शाये हुआ, तीसरा ज़रब कलीम 1936 में शाये हुआ और चौथा अरमुगान एजाज 1938 में शाये हुआ। जो नज़्म साकीनामा है वो बाले जबरील में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40, दर्ज़ेल किरदार किस ड्रामे से ताल्लुक़ रखते हैं। नौशाबा और फरीदून ये जो दोनों किरदार हैं मोहम्मद हसन के ड्रामा ज़हाक से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये इमरजेंसी के पस मंज़र पर लिखा गया ड्रामा है। अमानत लखनवी का ड्रामा इंद्र सभा कब लिखा गया। अमानत लखनवी का ड्रामा इंद्र सभा उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा माना जाता है, 1852 ईस्वी में लिखा गया था। आगरा बाज़ार ये ड्रामा है। उर्दू के किस शायर के अहद और मुआशरत की अक्कासी पर मबनी है, तो नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मबनी है ड्रामा आगरा बाज़ार। अनारकली ड्रामा के मुसन्निफ़ कौन है, इम्तियाज़ अली ताज, ठीक है।
ये जम्मू कश्मीर के लेक्चरर के इम्तिहान में पूछे गए सवाल हैं जो कि बहुत आसान हैं। कौन सा किरदार आग के दरिया का नहीं है? आग का दरिया नावल किसका है? कुरैतुलैन हैदर का। उसके किरदार है गौतम नीलम्बर, हरिशंकर और चंपा। लेकिन मंगल ये किरदार जो है वो बेदी के नावल, बेदी का नावल कौन है? एक चादर मैलिसी उसका किरदार है। ज़ैल के किस तहजीब में पंजाबी ज़ैल के किस नावल में पंजाबी तहजीब व सकाफ़त की तर्जुमानी होती है? तो बेदी का नावल एक चादर मैलिसी, इसमें पंजाबी तहजीब व सकाफ़त की तर्जुमानी होती है। यहाँ पे दो अक़वाल हैं। पहला कौल है कि सादत हसन मंटो अपने अहद का बेबाक तर्जुमान है, उसने जिनसी मौज़ूआत को भी बखूबी पेश किया। पहला कौल बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ तवाइफ की ज़िंदगी को मौजू बनाया जी नहीं, तवाइफ की ज़िंदगी को मौजू बनाया लेकिन सिर्फ कह दे तो ये निगेटिव पॉइंट है, यानी कि गलत है। तो इसलिए पहला वाला कौल सही है, दूसरा वाला कौल गलत है। ऑप्शन 4 सही होगा। बलराज मैनरा का अफसाना है वो किस तहरीक या रुझान के ज़रिए असर लिखा गया अफसाना है? तो ये जदीदियत के रुझान के तहत बलराज मैनरा ने अफसाना लिखा था। अफसाने का नाम है वह। काजी इनाम हुसैन किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? तो पीतल के घंटे का किरदार है। पीतल का घंटा ये अफसाना किसका है? आप लोगों को कमेंट में बताना है।